Hello everyone. Today we are going to discuss a 6th class NCERT chapter, Getting to Know Plants. As we know, we cannot imagine a life without plants. Plants are the only source of food that we have. Plants also help in balancing our environment by giving us proper oxygen and food. And on the other hand, it's receiving carbon dioxide from us and food from us obviously. That means carbon dioxide from our body and the waste from our body act as a food for the plant, and the waste from plant body act as a food for us. So in this way, plants are most inevitable part of our lives. Today we are going to discuss about a little bit of details about something more about plants. Something more means what? Means what is a typical plant? What does a typical plant look like? A typical plant has a part of its body below the ground, and the part of the body below the ground is called root. The part of the body above the ground is called shoot. So let's have a close look at a typical plant. The shoot may have leaves. These leaves will later on form branches from their nodes. The point where a leaf is present is called a node. Here we have the leaf. This is the stem. And what about the place between two nodes? The place between two nodes is called internode. So internode is the place between two nodes. You have one particular, you can say, point where a leaf is provided to the plant. Here the leaf is produced, another leaf is here. So the place between two nodes is called internode, not to forget. On the other hand, a plant always has a kind of a fruit. Why does a plant have a fruit? Which shows that seeds are there and it helps in continuity of the next one generation to another from a plant. So fruit is the baby of the plant. On the other hand, we also have a flower. What's a flower? The flower is the reproductive part of a plant. It is responsible to carry male and female cells like pollen grains, etc., which helps in combining together and forming a new baby, that is the new fruit. So these are the major parts of a plant, that is the root, the leaf, the stem, the fruit. These are the typical parts of a plant. Now let's continue one by one with the root. Root is the non-green part, the first point. It is the non-green part. Why? Because it is below the ground. That means it has no chlorophyll. It has no green pigment chlorophyll. What is the role of root? The role of root is to provide anchorage to the plant. That means ये plant को पकड़ के रखता है ज़मीन के साथ. और दूसरी तरफ it also helps in absorption, मतलब कि काम की चीज़ें, पानी वगैरह, absorption, nutrients, सब कुछ roots absorb करके पूरे plant को provide कर देता है. तो this is the major function of root. आपको याद रखना है बहुत easily. दो alphabets, दो A याद करने हैं आपने. A पहला A क्या है? Anchorage to hold the plant firmly to the ground, और दूसरा A है absorption. ठीक है. क्योंकि रूट में क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए रूट्स ग्रीन कलर के नहीं होते. इनमें क्लोरोफिल है ही नहीं और ये ज़मीन के नीचे भी है, तो ये फर्मली पकड़ के रखते हैं प्लांट को. अपार्ट फ्रॉम दिस रूट्स के टाइप्स, कई किस्म के रूट होते हैं. मेजरली जो हम पढ़ते हैं स्टोरेज रूट्स. ठीक है. स्टोरेज रूट्स कौन से ध्यान देंगे. 4 किस्म के स्टोरेज रूट्स होते हैं. एक हो गया कैरेट, एक हो गया रेडिश मूली, एक हो गया टर्निप शलगम. ये देखो ये सारे स्टोरेज रूट्स हैं. क्यों? क्योंकि ये इतने फ्लैशी हैं. ठीक है. एक हो गया मिराबिलिस. कई लोगों को ये अदरक लगता है. प्लीज़ ये अदरक नहीं है, मिराबिलिस है. मिराबिलिस का रूट भी इसी तरह से फ्लैशी रूट है. दिस इज मिराबिलिस, दिस इज टर्निप, दैट इज शलगम, दिस इज रेडिश, दैट इज मूली, एंड दिस इज कैरेट, दैट इज गाजर. तो ये रहे आपके 4 स्टोरेज रूट्स. यहाँ देखिए
रूट्स कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, स्टोरेज करते हैं। इसके अलावा रूट्स ब्रीथ भी करते हैं, ब्रीदिंग रूट्स। कई प्लांट्स हैं जो ब्रीद करते हैं रूट्स के थ्रू। जी हाँ, मैंग्रोव प्लांट्स दलदल में उगते हैं। मैंग्रोव, मैंने मैंगो नहीं कहा, मैंग्रोव प्लांट्स जो कि दलदल में होते हैं, इनके रूट्स सांस लेने के लिए, क्योंकि दलदल और कीचड़ में इन तक हवा नहीं पहुंच पाती, तो दे ट्राई टू कम आउटसाइड, ये ऐसे ना बाहर आ जाते हैं, थोड़े से ऐसे ऐसे करके इनके टिप्स जो हैं ये बाहर आ जाते हैं। इन्हें कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स। ब्रीदिंग रूट्स सांस लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। तो रूट्स का एक और मॉडिफिकेशन, एक और स्पेशलिटी कि कई किस्म के रूट्स ब्रीदिंग में भी मदद करते हैं। द नेक्स्ट वन इज सपोर्टिंग रूट्स। सपोर्टिंग रूट्स, कैन यू इमेजिन, कुछ रूट्स सपोर्टिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला बैनियन ट्री, आपने बैनियन ट्री देखा होगा। बैनियन ट्री में जो आपको उस ट्री के आसपास के ये जो सपोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये रूट्स है, ये रूट्स है, ठीक है। और ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये ब्रांचेस से निकल रहे हैं। तो ये नीचे के रूट्स है जो ऊपर की तरफ जाकर इस तरह से ब्रांचेस के ऊपर कर्ल करके नीचे आ जाते हैं, और ये किस लिए हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट। तो यहाँ पर ये वो रूट्स हैं जो सपोर्टिंग में मदद करते हैं। इसके अलावा मेज़ दैट इज़ मक्की में भी आपने देखा होगा कि मक्की के जो स्टेम बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, यहाँ पर इस तरह के ना छोटे छोटे रूट्स बाहर को निकल आते हैं। ये क्या करते हैं, ये ज़मीन के साथ जैसे फोटो फ्रेम नहीं होती उसकी तरह इट स्टार्ट सपोर्टिंग इट जस्ट गिव्स लाइक अ फ्रेम अपीयरेंस टू द स्टेम। तो मेज़ और बैनियन ट्री सपोर्टिंग रूट्स की तरह काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर रूट्स, लेट्स कम टू लीव्स। लीव्स, व्हाट्स अ लीफ? स्टेम के ऊपर जिस जगह पे लीफ लगा है उसे नोड कहते हैं, नोड। ये रहा एक कंप्लीट पत्ता। दिस इज अ कंप्लीट लीफ। ये जो बीच से लाइन ड्रॉ करते हैं हम पत्तों के बीच में, इसे मिडरिब कहते हैं, मिडरिब। ये असली वो वेन है, वो नस है जिसके अंदर से सारा साइटोप्लाज्म, वाटर जो भी प्रोवाइड करना है नरिशमेंट, इट इज़ प्रोवाइडेड टू द लीफ। इसके अलावा ये जो साइड में आप देख रहे हो इसे कहते हैं वेन्स, इन्हें हम कहते हैं वेन्स। तो लीफ हैज़ मिडरिब एंड मिडरिब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेन्स। ये जो बाहर आप मार्जिन देख रहे हो इसे आप लैमिना भी कहते हो। लैमिना की जगह पर लीफ ब्लेड भी कह सकते हो। तो लीफ ब्लेड, लीफ मार्जिन या लीफ लैमिना एक ही बात है। ये रहा आपका स्टेम जिसके साथ ये लीफ लगा हुआ है, ठीक है। लीफ के बेस को, वो डंडी जिससे लीफ स्टेम के साथ लगी हुई है, इसे हम कहते हैं पेडिसल। पेडिसल के अलावा एक और वर्ड है स्टॉक, बात एक ही है। क्योंकि लीफ ग्रीन इन कलर है तो दैट मीन्स लीफ हैज़ क्लोरोफिल। अगर लीफ के पास क्लोरोफिल है तो मतलब वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। क्या लीफ का काम सिर्फ फोटोसिंथेसिस करना ही है? ना जी, लीफ का काम फोटोसिंथेसिस के अलावा ट्रांसपीरेशन करना भी है। ज्योग्राफी में ये वर्ड आपने पहले सुना होगा कि ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। पत्ते जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन करेंगे, जितना ज़्यादा पानी छोड़ेंगे, उतने ही बादल बनेंगे, बारिशें होंगी। तभी कहते हैं कि प्लांट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस एंड रेन्स, सॉइल इरोजन। हम कहते हैं ना ये सब इनके कितना रोल है इस चीज़ में। अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर देते हो तो रूट कहाँ है, डिफॉरेस्टेशन तो हो गई, तब रूट ने जो मिट्टी पकड़ के रखी थी, ज़मीन को पकड़ के रखा हुआ था, वो सब इरोड होना शुरू हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो गई, आ गई मुसीबत। दूसरी तरफ अगर आप इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करोगे तो पत्ते गए, पत्ते नहीं होंगे तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगी, ट्रांसपीरेशन नहीं होगी तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। तो हम तो अपने लिए गड्ढा खोद देते हैं अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज करते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ इसीलिए लिंक की गई क्योंकि आपको पता हो कि लीफ का मेजर फंक्शन केवल फोटोसिंथेसिस ही नहीं है, इसका एक और फंक्शन है, दैट इज ट्रांसपीरेशन, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है जी, तो फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपीरेशन दोनों। फोटोसिंथेसिस सभी को पता है कि इट इज मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द फ्रूट। अब ये फ्रूट किस चिड़िया का नाम है, जरा ध्यान से सुनना। अब मैंने आपको फ्रूट बोला तो आपके दिमाग में फ्रूट ही आएगा। यहाँ पर फ्रूट का मतलब बेबी है, इट्स द बेबी ऑफ द प्लांट।
बेबी ऑफ प्लांट। अब मैंने ये क्यों लिखा बेबी ऑफ द प्लांट, क्योंकि बच्चों को लगता है कि अगर मैम ने बोला फ्रूट तो इसका मतलब वो फल है, फल। नो प्लीज, इट्स नॉट फल यहाँ पर कि वो, इसका मतलब कि बैंगन जो है वो तो सब्जी है, तो क्या वो फ्रूट है या नहीं है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो आप लोग अलग अलग करके पढ़ते हो वो एक्चुअली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आप सेपरेट सेपरेट पढ़ते हो वो एक्चुअली हम बायो में या साइंस में एक ही वर्ड के अंडर पढ़ेंगे, द बेबी। तो अब टमाटर अपने प्लांट का बेबी है, ब्रिंजल अपने प्लांट का बेबी है, लेडी फिंगर अपने प्लांट का बेबी है, तो ये सब अपने अपने प्लांट के फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो ये फ्रूट क्या है, इट इज़ द फ्रूट मार्क्स द एंडिंग ऑफ वन जनरेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट। फ्रूट से हमें पता चलता है कि एक फ्रूट के अंदर होता क्या है। तो एक फ्रूट के अंदर, या ब्रिंजल जो है, ये ब्रिंजल भी फ्रूट है, ये अपने प्लांट का फ्रूट है, ये अपने प्लांट का फ्रूट है, इसके अंदर होते हैं सीड्स। तो ये फ्रूट किस चीज़ को कहते हैं? अ फ्रूट इज अ राइपन्ड ओवरी। एक ओवरी, एक फ्लावर का हिस्सा, एक फीमेल पार्ट जो राइप हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, उसे फ्रूट कहते हैं। ये भी राइप ओवरी ही है, ठीक है। तो फ्रूट इज अ राइपन्ड ओवरी, और इसके अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स, जिसे हम कहते हैं सीड्स। ये आगे जाके सीड्स बनाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रूट? पहला, फ्रूट को हम खा सकते हैं, ऑब्वियसली वेजिटेबल एंड फ्रूट बना के, वो अलग बात है, लेकिन प्लांट के लिए इसका क्या फ़ायदा है? जब भी प्लांट को कोई फ्रूट लगता है तो इसका मतलब ये कि ये उसका एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट। और इसके अंदर जो बीज हैं, जो भी जानवर इसे खाएगा, जैसे कोई गिलहरी है या कीड़े, कोई इंसेक्ट है या कोई चूहा है, जब भी इस पर्टिकुलर फ्रूट को खाएगा तो इसके अंदर के सीड्स को वो यहाँ वहाँ डिस्पर्स कर देगा। तो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के लिए फ्रूट बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स इन्हें खाने के चक्कर में सीड डिस्पर्जल करते हैं, और इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं या जो सीड्स हैं उन्हें अलग अलग जगह पे प्रोवाइड करके प्लांट की जनरेशन को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। तो सीड्स आर प्रेजेंट विद इन द ओवरीज। हियर वी हैव अ राइप ओवरी, दैट इज नोन एज द फ्रूट। फ्रूट एक एंड प्रोडक्ट है एक प्लांट का। आगे बढ़ते हैं। फ्लावर, ये फ्लावर क्या चीज़ है? फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये देखिए जी, फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये लीजिए, ये मैंने फ्लावर ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। फ्लावर के कौन से हिस्से हैं? एक ये नीचे वाला, इसे हम कहते हैं कैलिक्स, इसे हम कहते हैं कोरोला, जिसे आप पेटल्स और सेपल्स के नाम से भी जानते रहे हो, ठीक है। जैसा कि पहले बताया, here you have the stalk or the pedicel, here you have the thalamus, और ये जो सेंट्रल में आप पार्ट देख रहे हो ना, इसे हम कहते हैं द फीमेल पार्ट, और ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसे हम कहते हैं मेल पार्ट। तो एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। ये दोनों के दोनों पार्ट्स आपस में अपने एग्स को मिक्स करके, फ्यूज करके फल, दैट इज बेबी बनाने में मदद करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक फ्लावर का होना बहुत ज़रूरी है। फ्लावर के फीमेल पार्ट का क्या नाम है? दैट इज, यहाँ पर ध्यान देना प्लीज, फीमेल पार्ट के नाम देखिए, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। इस पर पोलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं। दिस इज नोन एज द स्टाइल। इसके अंदर से पोलन ग्रेन्स, इस पूरे स्टाइल के अंदर से पोलन ग्रेन्स नीचे पहुंच जाते हैं। नीचे कौन मौजूद है? यहाँ पर नीचे एग है जी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर आपको एग या ओव्यूल मिलेगा। पोलन ग्रेन्स यहाँ से होते हुए एग तक जाएंगे और तब कहीं जाके फल बनेगा, फ्रूट बनेगा। लेट्स टॉक अबाउट द मेल पार्ट्स। अगर मेल पार्ट की बात करें तो ये मेल पार्ट्स हैं, इसे ज़रा ध्यान से देखिए। मेल पार्ट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, कटोरी जैसे स्ट्रक्चर। इसे हम कहते हैं एंथर और इसे हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, एंथर में छोटे छोटे सेल्स भरे हुए हैं। अगर उसके सेक्स सेल को हमने एग बोला तो इसके सेक्स सेल को हम पोलन ग्रेन्स बोलेंगे। मेल के हिस्से, जैसे इंसानों में स्पर्म्स होते हैं वैसे ही फ्लावर के मेल के बॉडी के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो एक तरीके से ये टेस्टीज है, जैसे इंसानों में होता है। ये जैसे पोलन ग्रेन है
जैसे इंसानों में स्पर्म्स है, इसके पास पोलन ग्रेन है, और जैसे इंसानों में ओवम है वैसे इसके फीमेल पार्ट के पास एग है। जब पोलन ग्रेन और एग आपस में मिलते हैं तो इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और आखिरी, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जैसे ये एंथर है, इसके पोलन ग्रेन्स उड़कर स्टिग्मा तक कैसे आएंगे, किसी इंसेक्ट के थ्रू, किसी बर्ड के थ्रू, ठीक है। दिस ट्रांसफर इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन्स और एग आपस में मिलेंगे, फ्यूजन होगी और यहीं पर फ्रूट बनेगा, ठीक है। ये रहा ओवरी के अंदर फ्रूट बनेगा। यही रीज़न है कि हम फ्रूट को राइपन्ड ओवरी कहते हैं। इसी के अंदर फल बनेगा, फूल के पेटल्स टूट जाएंगे और फ्रूट जो है वो यहीं पर लटकने लग जाएगा पूरे पेड़ के साथ।